Hello everyone, I am Puneet Kumar Goyal and today we will discuss a lecture in data structure on the graph, and the topic is graph terminology, adjacency matrix, incidence matrix and adjacency list representation. Now, first question arises that what is graph? If we talk about the graph, first of all graph is a non-linear data structure. Why it is called non-linear? Because in the non-linear structure we can move in any direction, but in linear data structure we can move in sequentially. So, it is a non-linear, non-hierarchical data structure. Why it is called non-hierarchical? Because it does not follow parent-child relationship. It consists of vertices and edges. If we talk about a graph, we represent it using V comma E, where V is a set of vertices and E is a set of edges. तो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफ नॉन हायरार्किकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है. वाई इट इज कॉल्ड नॉन हायरार्किकल? बिकॉज वी कैन ट्रेवर्स इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम अ गिवन नोड. इफ सपोज देयर इज अ नोड, it is a graph. Why it is called graph? Because there is a set of vertices A, B, C and set of edges. It is a set of pair of vertices. From A we can move to B, A comma B, first edge, and another edge is C comma A. Now, set of vertices and is a set of edges. Each node may be connected with two or more elements. Now, here this node is connected with that node and also that node A, B, C, D. Now, if we represent it using V and G, then there are 4 vertices. और अगर हम edges की बात करते हैं, A comma B, A comma C, B comma D, C comma D, these are the edges and number of edges are there. तो edges क्या होते हैं? Set of pair of vertices. तो हर एक edge में 2 vertices होंगे. तो ये था हमारा ग्राफ का इंट्रोडक्शन. नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ. अगर मैं टाइप्स ऑफ ग्राफ की बात करता हूँ, फर्स्ट आता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ. इन अ सिंगल लाइन डेफिनेशन इज एन अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस. अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ. तो यहाँ पे हम समझते हैं अनऑर्डर्ड पेयर से क्या मतलब है. सपोज आपको ये ए बी सी डी, ये आपको ग्राफ दिया है जिसमें वर्टिसेस हैं आपके ए बी सी डी. अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक एच को ए कॉमा बी से, then it is similar to B comma A. There is no difference. AB represent the same edge and also BA represent the same edge, because they are the unordered pair of vertices. यानी कोई डायरेक्शन नहीं दी होती. A comma B है तो सेम वही होगा B comma A. If we talk about the directed graph, in directed graph it is a ordered pair of vertices. If we take this example, if I write as A comma B, why we have written A comma B? Because there is an edge from vertex A to vertex B. Here vertex A is called source vertex and vertex B is called destination vertex. Okay? तो ordered pair का मतलब क्या हुआ? There is some direction between the vertices. तो अगर आपने A comma B लिखा, then it will not be similar to B comma A, because A comma B हमें क्या information दे रहा है? There is a path, there is an edge from vertex A to vertex B. और ordered pair है तो एक डायरेक्शन दी हुई है हमें,
बट अगर मैं यही बात करता हूं अनडायरेक्टेड ग्राफ में, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ देयर इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ए बी भी सेम है और बी ए भी सेम है, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ. नाउ कम टू द सम बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. फर्स्ट इज पाथ. इफ वी डिफाइन अ पाथ इज a path from vertex v0 to vertex vn, क्या होगा? It is a sequence of vertices v0, v1, v2, vn, so that v1 is adjacent to v0, v2 is adjacent to v1 and so on. तो पाथ क्या होगा? नोड ए से नोड v0 से नोड vn तक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस, और पाथ की लेंथ क्या होगी? नंबर ऑफ एजेस, उनको हमें काउंट करना पड़ेगा. अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे? n-1. क्लियर है? नाउ अ पाथ इज कॉल्ड सिंपल पाथ. ए पाथ इज कॉल्ड सिंपल पाथ इफ all the vertices between v0 to vn, if all the vertices between v0 to vn are distinct except possibly the first and the last. यानी v0 और vn को अगर हम लीव करते हैं तो उसके अलावा v1, v2 एंड सो ऑन सभी डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस होंगे, डिफरेंट वर्टाइसेस होंगे. लेकिन अगर v0 vn सेम है तो सिंपल पाथ क्या बनाएगा? सिंपल पाथ विल क्रिएट अ साइकिल, and cycle can be defined as a path which has no repeated edges or vertices except the first and last vertices. यानी पहले और लास्ट वर्टाइस सेम होगा तो वो कहलाता है साइक्लिक पाथ. क्लियर है? नाउ कनेक्टेड ग्राफ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टेड ग्राफ? इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, अगर एवरी पेयर ऑफ वर्टाइस के बीच एक पाथ है तो हम उसको कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं. यानी इफ वी ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस, देन इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ बिकॉज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर इज अ पाथ. ए और बी के बीच भी आपका एक पाथ दिया हुआ है, ए और सी के बीच भी आपका पाथ दिया हुआ है, एंड बी और सी के बीच भी, क्योंकि ए और बी के बीच एक एज आ गई, बी एंड सी के बीच भी देयर इज एन एज, एंड ए और सी के बीच भी एज है. नाउ कंप्लीट ग्राफ. इफ देयर इज एन एज फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ. वो अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एवरी वर्टेक्स से दूसरे सभी वर्टेक्स पर एजेस होती है वो कहलाता है आपका कंप्लीट ग्राफ. नाउ इफ वी ड्रॉ अ डायग्राम then this will be a complete graph, because if we talk about vertex a b c d तो a से b तक का भी है एज, a से c के लिए भी है, a से d के लिए भी. when we talk about b, b से a, b से c and b से d. now when we talk about d, d से c, d से b and d से a. so this is called a complete graph. and what do you understand by next term? it is a weighted graph. जनरली वेक्टेड ग्राफ जो होता है फिजिकल सिचुएशन, जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनमें यूज किया जाता है. सपोज इफ यू वांट टू शो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, तो आप क्या करोगे? आप दो वर्टिसेस को ड्रॉ करोगे, दैट इज अ सिटी ए एंड दैट इज अ सिटी बी. जितने भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल लाइफ ग्राफ्स जो होते हैं वो वेक्टेड ग्राफ होते हैं. सिटी ए से सिटी बी के बीच आपको डिस्टेंस शो करना है तो यू प्रोवाइड सम वैल्यू टू द एज 30. तो यहाँ पे ए से बी के बीच जो हमने एज पर 30 लिखा है वो क्या बताता है? डिस्टेंस अमंग टू सिटीज इज 30 किलोमीटर्स. ठीक है, तो फिजिकल सिचुएशन जितने भी होते हैं उनमें वेटेड ग्राफ को यूज किया जाता है. तो वेटेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी असाइन सम वैल्यू टू एन एज, जब भी हम एज को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ. Now, digraph. A digraph is a directed graph in which each edge of the graph is associated with some direction, and the traversing can be done only in the specified direction. यानी हर एक एज के साथ ऑफ ग्राफ एक डायरेक्शन मेंशन होती है और हम केवल एक ही डायरेक्शन में उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं.
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लूप. अगर मैं लूप की बात करता हूं तो इफ वी मेंशन अ एज v comma v और a comma a, then it is called a loop. An edge that is associated with the similar endpoints, यानी स्टार्टिंग वर्टेक्स भी सेम है और एंड वर्टेक्स भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एज और लूप. स्टार्टिंग वर्टेक्स भी आपका ए है और एंड वर्टेक्स भी आपका ए है, देन इट इज कॉल्ड लूप. नाउ कम टू द एडजेसेंट नोड. Two nodes are said to be adjacent if there is an edge from node u to node v. That is a node A. अगर मैं इस नोड की बात करता हूं, that is a node B. B is adjacent to node A because there is an edge from node A to node B. Now, degree of the node. Number of edges connected to a node is called the degree of a node. डिग्री ऑफ अ नोड को हम दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंग डिग्री. अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करता हूं, एंड अनदर वन इज आउट डिग्री. इंग डिग्री क्या होगा? इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ग्राफ हेयर, इंग डिग्री ऑफ नोड बी, नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू द नोड, number of edges coming to the node is called ing degree. तो यहां पे ing degree क्या है b की? 1. and what we about out degree? number of edges going out from a vertex is called the out degree of that vertex. उस vertex की out degree कहलाती है. तो यहां पे vertex b की out degree क्या है? vertex b की out degree है 0. अगर a की बात करते हैं तो a की ing degree क्या है? नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू द वर्टेक्स ए 0. आउट डिग्री क्या है? आउट डिग्री है आपकी 1. सोर्स वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्टेक्स फ्रॉम विच ऑल अदर एजेस आर गोइंग आउट एंड नो एजेस कमिंग टू दैट नोड. यानी वो वर्टेक्स जिससे सभी एजेस बाहर जा रहे हैं, गोइंग आउट, वो कहलाता है सोर्स वर्टेक्स. एंड द डेस्टिनेशन वर्टेक्स, ऑल एजेस कमिंग टू दैट नोड. तो सोर्स वर्टेक्स की इंग डिग्री क्या होगी? हमेशा याद रखिए, सोर्स वर्टेक्स की इंग डिग्री होगी 0 एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स की क्या होगी? आउट डिग्री 0, बिकॉज सभी एजेस उस पर आ रही हैं, मीट हो रही हैं. सोर्स वर्टेक्स सभी एजेस उससे बाहर की तरफ जा रही हैं, गोइंग आउट, देन इट इज कॉल्ड सोर्स वर्टेक्स. Now, representation of graph into the computer memory. Again, static representation and dynamic representation. Static memory representation and dynamic memory representation. अगर मैं static memory representation की बात करता हूँ तो सबसे पहला टर्म आता है आपका मैट्रिक्स 2D array. It is also called sequential representation because मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी sequentially स्टोर होती है. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं टू स्टोर द मैपिंग रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टाइसेस एंड द एजेस. अगर आपके पास n वर्टाइसेस हैं तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होगी वो n क्रॉस n की होगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी. अगर आपके पास n वर्टाइसेस हैं तो मैट्रिक्स का साइज होगा n क्रॉस n, n नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम. अब सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ को इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. दिस इज योर ग्राफ. नाउ देयर आर 5 नोड्स ए बी सी डी ई, तो मैट्रिक्स विल बी ऑफ 5 क्रॉस 5, ए बी सी डी एंड ए बी सी डी ई. एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंट्री कैसे करेंगे हम? इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स वी आई टू वर्टेक्स वी जे, देन adjacency aij will be 1 if there is an edge
from vertex vi to vertex vj, otherwise it will be 0. तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं इसकी एंट्री, ए से ए कोई एज नहीं है तो यहाँ 0 आ गया, ए से बी एक एज है तो 1 आ गया, ए से सी अगेन 0, ए से डी एक एज है 1, ए से ई कोई एज नहीं है तो 0. तो अनडायरेक्टेड के ग्राफ के केस में क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं. तो उसमें क्या होता है, वी आई कॉमा वी जे अगर कोई एज है, इट विल बी सिमिलर टू वी जे कॉमा वी आई, क्योंकि कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है. तो अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ ए से बी अगर एक एज है तो वहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बी से ए भी एक एज होगी क्योंकि अनडायरेक्टेड है, तो बी से ए में देखिए 1 आएगा. अगर ए से डी में एक एज है तो आप चेक कर सकते हो डी से ए में भी एक एज होगी, बिकॉज अनऑर्डर्ड पेयर के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. सिमिलर वे में बी से सी के लिए एक एज है तो सी से बी की भी एक एज होगी, तो आप एक ही बार में दोनों एंट्रीज कर सकते हैं. बी से डी एक एज है तो डी से बी भी एक एज होगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी से ई अगर एक एज है तो ई से सी भी होगी. नाउ डी से ई अगर एक एज है तो ई से डी भी होगी. तो ये जो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है. अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सिमेट्रिक्स अगर आप डायगोनली देखोगे तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मिरर इमेज सेम नजर आएंगे आपको. दैट्स व्हाई एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है. नाउ कम टू द केस 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ इन एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स. डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एन एंट्री Mij इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ विल बी 1 इफ देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट एज बिटवीन vi टू vj. अब यहां पे आता है ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट देयर इज एन एज फ्रॉम a टू b, then it will not be similar to b comma a, because ये डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, एक ऑर्डर पेयर है. तो अगर ए से बी में आपको एरो दिखा हुआ है, ए से बी में अगर एरो ड्रॉ है, इसका मतलब क्या है, देयर इज एन एज फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है, बट देयर इज नॉट एन एज फ्रॉम बी टू ए. तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, एडजेसेंसी ऑफ ए आई जे इक्वल टू 1 इफ देयर इज एन एज, अदरवाइज 0. लेकिन यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी. अगर आपको डायरेक्शन ए से बी का दिया है, बी से ए का नहीं दिया, तो आप केवल ए से बी के लिए 1 एंटर करेंगे, बी से ए के लिए 1 एंटर नहीं करेंगे. जबकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या था, अगर ए से बी आपने 1 एंटर किया तो आप बी से ए भी 1 एंटर कर सकते हो, बिकॉज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस थे. तो रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन n क्रॉस n बनेगा, A B C D E, A B C D E. There is an edge from A to B, yes 1, D to A to D no, तो बाकी सभी 0 हो जाएंगे. अगेन B to C and B to D, तो B to C और B to D में तो 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा. अगेन C to E only, D to A only and E to D only. That is the adjacency matrix representation of undirected graph. Now if we talk about the representation of weighted graph, weighted directed graph, इस केस में क्या होगा, अभी तक हम क्या एंटर करते थे, if there is an edge from A to B, अगर A से B के लिए एक एज है तो हम क्या एंटर करते थे 1. बट इन केस ऑफ वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ के केस में हम क्या एंटर करेंगे, जो भी वैल्यू आपको एज पर दी होगी, यानी A से B में अगर एज है तो हम क्या एंटर करेंगे, वैल्यू गिवन एट एज, गिवन एट दैट एज. इन द सेम वे B to C 2 and B to D 1.
In the similar way, we can make the entry for other edges. Now, representation of undirected graph in adjacency list. लेकिन इस पर आने से पहले एडवांटेज समझ लेते हैं और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के। देखिए, अगर n वर्टेक्स है तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स तो बनेगी ही बनेगी। इस केस में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अगर नंबर ऑफ एजेस बहुत कम है तो उस केस में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वर्टेसेस ज़्यादा हैं, n वर्टेसेस हैं तो n क्रॉस n स्क्वायर का तो एंट्री होगा ही होगा, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन अगर एजेस केवल e हैं, एजेस केवल e हैं तो n स्क्वायर माइनस e, ये जो एंट्रीज होंगी ये सभी जीरो होंगी, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। लेकिन अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज की बात अगर हम करते हैं तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एज बिटवीन टू एजेस, एज बिटवीन टू वर्टेसेस, इन दैट केस क्या होगा, सिंपली हम क्या चेक कर सकते हैं, a ऑफ आई जे इज 1। अगर a ऑफ आई जे आपका 1 है इसका मतलब एज है, अदरवाइज नो एज। अगर a ऑफ आई जे आपका 1 है तो एज रहेगा, अगर 0 है तो एज नहीं है। क्लियर है? इन द सेम वे डिग्री भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इजिली नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज को काउंट करके। तो ये कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। नाउ कम टू द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, तो हम एरे ऑफ पॉइंटर्स को लेते हैं। यानी हर नोड के लिए एक लिस्ट बनेगी, कलेक्शन ऑफ नोड्स हर एक नोड के लिए या हर एक वर्टेक्स के लिए। तो अगर मैं वर्टेक्स ए की बात करता हूं तो वर्टेक्स ए के एडजेसेंट कितने नोड हैं, बी एंड डी। तो ये वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स ए के एडजेसेंट यानी ये नोड हो गया। तो नोड बी, और नोड बी का सेकंड पार्ट होगा एड्रेस फील्ड दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द एडजेसेंट नोड डी। तो ए के दो एडजेसेंट नोड हैं, तो इसमें ए में कितने नोड आएंगे, ए लिंक लिस्ट में कितने नोड आएंगे, 2। अगर बी की बात करता हूं तो बी के एडजेसेंट नोड 3 हैं, बी डी, ए डी एंड सी। तो बी में कितने नोड आएंगे, ए डी सी। तो अगर मुझे डिग्री पता करनी है तो मैं क्या पता करूंगा, मुझे काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ नोड कितने हैं इसमें। दूसरा एडवांटेज इसका क्या मिलेगा, अगर नंबर ऑफ एजेस कम है और नंबर ऑफ वर्टेसेस ज्यादा हैं, इन दैट केस मेमोरी वेस्टेज आपका बहुत कम होगा, बिकॉज आप अगर एज एग्जिस्ट करती है तभी आप नोड की एंट्री करोगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मेमोरी स्पेस सेव कर लिया। बट अगर मुझे एक डिग्री फाइंड आउट करनी है तो मुझे नोड को काउंट करना पड़ेगा। और अगर मुझे पता करना है देयर इज एन एज बिटवीन टू नोड, बिटवीन टू वर्टेसेस, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उस नोड को, उस वर्टेक्स को सर्च करना पड़ेगा लिंक लिस्ट में, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो दोनों डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता था अगर नंबर ऑफ एजेस बहुत कम है, लेकिन वहीं इन डिग्री को फाइंड करना, टोटल डिग्री को फाइंड करना आसान था, नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज को आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, अगर दो वर्टेक्स के बीच में एज है वो पता करना है तो वो भी आप इजीली पता कर सकते थे कांस्टेंट टाइम में। अब आते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पे। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जितने वर्टेसेस हैं आप एक एरे ऑफ पॉइंटर लेंगे, उसमें उतने वर्टेसेस का एड्रेसेस स्टोर करेंगे। नाउ हर वर्टेसेस के एडजेसेंट नोड होंगे, तो वर्टेस ए के अगर दो एडजेसेंट नोड हैं तो आप एक लिंक लिस्ट मेंटेन करेंगे जिसमें 2 नोड होंगे। तो इस केस में क्या होगा, मेमोरी तो हम सेव कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एजेस अगर कम है तो आप उतने ही नोड उसमें इंसर्ट करेंगे। अगर एजेस 2 ही हैं तो 2 ही नोड इंसर्ट होंगे। ठीक है, बिकॉज एडजेसेंट नोड के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर रहे हो। लेकिन अगर आपको टोटल डिग्री फाइंड आउट करना है तो आपको पूरा लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, नोड को काउंट करना पड़ेगा, कितने नोड एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? वहीं अगर आपको एजेस फाइंड करनी है बिटवीन टू वर्टेसेस तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कुछ एडवांटेज एडजेसेंसी लिस्ट के हैं, कुछ एडवांटेज एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हैं, कुछ डिसएडवांटेज एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज आपके एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के भी हैं। तो ये तो था अनडायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूंगा,
अगर एडजेसेंट नोड क्या होगा, अगर देयर इज एन एज फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, तो नोड ए से नोड बी के बीच एज है, तो ए का एडजेसेंट केवल बी हुआ। बी के केस में अगर हम बात करेंगे तो बी का एडजेसेंट नोड डी और सी होंगे, वो हमने लिस्ट में एंट्री कर दिया। बी का एडजेसेंट सी है और बी का एडजेसेंट डी है। जैसी जो लास्ट नोड होगा वहां पे आपका ये नल एंट्री, नल इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ इन एडजेसेंसी लिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक नोड, हम नोड के थ्रू, लिंक लिस्ट के नोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक वर्टेक्स को, ठीक है, एडजेसेंट नोड को। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमारे दो फील्ड होते थे, एक तो वो वर्टेक्स एडजेसेंट नोड और एड्रेस फील्ड। लेकिन अगर वेटेड ग्राफ की बात करता हूं तो मैं नोड के तीन पार्ट करूंगा, वर्टेक्स यानी एडजेसेंट नोड और ए से बी के बीच जो वेटेड वैल्यू है, जो वैल्यू हमें दी है एच पर, उसको भी हम नोड के साथ स्टोर करेंगे, नोड में स्टोर करेंगे। तो यहां पे तीन फील्ड हो गए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेटेड ग्राफ इन एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ ग्राफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क लाइक रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क इन रियल लाइफ सिचुएशन। जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, एयर सिस्टम नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वो सभी आपके ग्राफ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्लियर है। नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक एंड व्हाट्सएप, वन फ्रेंड कनेक्टेड टू सेकंड फ्रेंड कनेक्टेड टू अदर फ्रेंड। तो इस तरह से एक ग्राफ, एक नेटवर्क बनता चला जाता है और कोई भी हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं होती इसमें। गूगल मैप हो गया आपका, गूगल मैप नेविगेशन सिस्टम, पाथ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, अगर मुझे कम डिस्टेंस में ही सभी सिटीज़ को कवर करना है, पाथ ऑप्टिमाइजेशन। वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क WWW, ये भी क्या है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स कनेक्टेड होती हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो हम OS में यूज़ करते हैं, विच रिसोर्स एलोकेट टू विच प्रोसेस। तो रिसोर्स एलोकेशन भी क्या है, आप ग्राफ का ही एप्लीकेशन कहते हो। तो ये सभी एप्लीकेशन किस चीज़ के हैं, ग्राफ के। और भी मैनी अदर एरियाज है इन विच वी यूज द ग्राफ। तो आज हमने समझा ग्राफ के बेसिक डेफिनेशन, ग्राफ टर्मिनोलॉजीज, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन द मेमोरी। मेमोरी रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, इन द सेम वे एडजेसेंसी लिस्ट के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल studied about the BFS algorithm, traversing algorithm of the graph. Thank you.